Hello everyone. Good morning. Yes, good morning everyone. Just a minute. Okay, you are able to hear me properly? Yes. Okay, just a minute. Okay, so today's topic will be starting with again acceptance testing, which is the last level of software testing, right? Okay, Gitanjali, can you confirm that you are able to hear me properly? Yes. Okay, I'm I ready. cannot see the mic actually. Fine, no issues. Okay, if you are able to hear me, then okay, I will continue with the topic. So very first in the last session, what the topic we have discussed, it's all about non-functional testing type. Along with that, we have covered change-based testing type. You need to remember two, retesting and regression testing. In ISTQB, retesting called confirmation testing. And then we have a regression testing, which is very interesting one. Like to automate our scenarios, we need, like based on regression testing, we can automate our scenarios. So regression is the most common, we can say, scenario for automation testing. Okay. So we'll see that in automation session. Again, we have completed the topic of experience-based testing technique. Like there are two techniques, exploratory and error guessing. But actually it is a part of ad hoc testing. So every time we do plan testing, but sometimes due to some challenges, we might go for ad hoc testing. So ad hoc testing का मतलब है random test. Okay. And then once you aware about these types, now it is time to discuss about last level, which is acceptance testing. So guys, so far we have seen what is unit testing, responsibility of a developer, integration testing where we can combine module and we can test their interface, right? System testing where we can test complete software application for its functional and non-functional requirement. जब complete process होगा, right? जैसे कि आपके system में functionality, non-functionality, everything is completed. Then we can go for acceptance testing. What does acceptance means? See, it is done by the absolutely end user, right? End user are responsible to accept the software application. But how? What they check during acceptance testing, that is also very, very important. Very first, end user need to make sure that application is working on their platform. So definitely they will take a demo, they will take the functionality demo, right? They will check that whether software is working on their real platform. So acceptance testing mostly conducted in real or somewhere it is in the simulated operational environment by intended user, focusing their need, requirement and the business process. So generally user will test everything. Whatever requirement user have shared with you, based on that whether application is ready, entire business process, guidelines, everything followed by you, right? So user is responsible to test each and everything related to that software application. The main objective during acceptance testing is what? Establish the confidence in the quality of system as a whole, right? So your software must be quality one. Validate that system is complete and will work as per expectation. Verify that functional, non-functional behavior of the system are as specified. So given requirement should match with your expectation of the customer, right? Or your software should match all the requirements of the customer. That is what the main objective during acceptance testing. Okay. But guys, how many different ways are there? Like what user will test? See, user will not test only software. Related to the software, whatever other things user have shared with you, let's say all the requirements should be fulfilled. If user define any configuration for that software, software should work that, for that configuration. अगर उस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, राइट, कुछ कंप्लायंस अवेलेबल है, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन हैज टू बी फॉलो, सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू बी फॉलो बाय द सॉफ्टवेयर, then user will test that rules, regulations, government policies too, right? Even all the network capacity, all the administrator work also user will verify whether everybody as per their right, as per their requirement or as per their role, they are able to log in or not into that software application. So not only functional, not only non-functional, but other aspect of software is also important to focus. So basically
there are different forms of UAT available in acceptance testing, like user acceptance testing, operational acceptance testing जहां पे installation testing होगा. Mostly network team, admin team, they are responsible for operational acceptance testing. Again, contractual regulatory acceptance testing. यहाँ पे सारे rules, guidelines को follow किया है, नहीं किया है, ये test किया जाएगा. User acceptance means they will check that whether software match with all its requirement, right? Given set of requirement. And then finally, they go for alpha beta testing. So guys, simple concept है, alpha testing is always happen in organized, or we can say in a simple control environment, but beta testing happens at a user environment. मतलब ये IT इंडस्ट्री में होगा और ये यूजर के प्लेटफॉर्म पे होगा. समवेयर बीटा टेस्टिंग, आप डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन को लाइव रिलीज करके टेस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में एनवायरनमेंट कैन बी सिमुलेटेड. मतलब एक डमी एनवायरनमेंट होगा जिस डमी एनवायरनमेंट पे एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाएगा. दिस इज वेरी कॉमन इन मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग गाइस. जब हम मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग करेंगे तो एवरी टाइम यू विल नॉट गेट अ रियल एनवायरनमेंट. In that case, we can use simulator, we can use for Android emulator, and we can create that environment whatever you need. And then you can complete your beta testing. तो एक ही पॉइंट है, अल्फा टेस्टिंग हैपन इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट. अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट रेज होता है, इमीडिएटली इट गेट फिक्स बाय द टीम. बट बीटा टेस्टिंग में अगर कोई डिफेक्ट रेज होता है, इट विल रिपोर्ट टू द IT इंडस्ट्री फर्स्ट. दे विल डिसाइड whether really this defect is need to be fixed, right? And then based on their decision, based on the customer expectation, they will fix the problem. So alpha beta testing that happens in the real time, but do remember that it's not only alpha beta, but there are some other factors also customer can check. The network configuration, contractual requirements, all the software requirement, functional, non-functional, everything is match or not, that is tested by customer or any end user. So what is alpha testing? See, most commonly used by software development team, alpha testing is a form of internal user acceptance testing conducted before launch a new feature or a product. So before releasing a new product or new that particular feature, very first your customer will do alpha testing. Here every person is involved, entire project team is involved because it happens in a control environment. So goal is to uncover any bug by having internal team member use the feature as if they were external user. So they will test as per the external user, they will check that how the software is working and where the software is breaking. And based on that, they can improve the quality of the software. So project teams simulate the experience a user will have in this new product. So project development team can go back and they can address the issue, and even they can, fix those defect before it goes to the live. तो यहाँ पे पूरा का पूरा project team will act like a user and they will test the application, and if they found anything they will work on it and immediately they will fix the problem. So alpha testing in shortcut, it always happen in a control environment. Whatever problems defect get raised, it get fixed within this phase only. But what is beta? Beta is some kind of live testing. बीटा में जनरली एप्लीकेशन का बीटा वर्जन रिलीज किया जाएगा, and the end user will validate that beta version, and they will guide you, they will report you if they found any defect. So it is a external user acceptance testing. Alpha testing is internal, but beta testing is external user acceptance testing, where the real users, they involve during the testing that entire product in the real environment. So it is also called as field testing because it happens in their own environment. It is also called as field testing, or we can say live testing, जहाँ पे end user अपने environment पे software को test करेंगे. तो beta testing ensures that quality of the product meets user standard expectation through the customer validation. Correct? And there are again several ways to release a product in beta. Either companies can invite user to test the product on their own. Otherwise, they can release it as a beta version into public. And then they can simple disclaim that it is still in the beta release. Means product is in the beta release, so there might be possibility we are going to change something. So that is what, the real time fact. So beta testing का मतलब होता है live testing. It is conducted by the end user. And this is the way.
आइदर ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाके टेस्ट करना है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, डिस्क्लेम करेंगे कि दिस इज व्हाट अ बीटा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर और बीटा रिलीज सॉफ्टवेयर। तो बीटा रिलीज है मतलब इट इज एक्सपेक्टेड दैट यस कि normally in the software there might be change, or maybe tomorrow if anything happen, that particular industry will change that software application. So still this application is beta. जब बीटा टेस्टिंग कंप्लीट होगा तब जाके हम लोग फाइनल एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर ओन वी कैन से क्राइटेरिया फॉर अल्फा बीटा टेस्टिंग। तो लेट्स हैव अ लुक डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द गोल? Validate quality and design. That's the main goal of alpha testing. But validate whether software is working as per the customer expectation. That's the main goal of beta test. Okay, to validate customer satisfaction and usage. Who does it? It is actually done in internally. Internally means within an organization. It is mostly outside the organization, or it is at the environment, whatever environment user have. नॉर्मली कब होता है तो देखो, ऑलमोस्ट दिस इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बट यूजुअली जैसे 60-80% आपका सॉफ्टवेयर रेडी है, दे सिंपल डू अल्फा टेस्टिंग। ऑलमोस्ट 80-90% पे दे डू बीटा टेस्टिंग, एंड देन आफ्टर बीटा टेस्टिंग दे कैन रिलीज द प्रोडक्ट। So who generally involved in the beta testing, alpha testing? See, entire team is involved in the alpha test. But beta testing may, it is basically on user experience. So some kind of end user are expected to visit organization, and they do beta testing. Quality management team, product management team, those are also involved in the beta testing phase. When the feedback implemented, in alpha testing immediate action happen, right? So immediately they address the issues, they fix it. But in beta testing, first of all, people or user need to report them to the development environment, and then they decide as per the requirement of the customer that is it really we need to take a action for that issue, and then finally they fix that particular problem. But in alpha testing immediate action happen. Okay, after alpha testing, what is the next phase? After alpha testing, product goes to beta, and after beta testing, product goes to release. This is how the difference between alpha and beta testing. So mostly if you search on Google, what are the different types of acceptance testing? You might not get all four types, like operational, regulatory, even user acceptance, alpha, beta. You will directly get an answer. There are two types, alpha testing and beta testing. And that is also true. Real time में this is how we do alpha, acceptance testing. But usually concept ये है कि ISTQB में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ड्यूरिंग अल्फा टेस्टिंग और ड्यूरिंग बीटा टेस्टिंग नॉट ओनली वी फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, but we have to focus some other aspect of the software too. And that's the reason in ISTQB they mention four different types. But real time mein, this is how we do alpha beta testing, which is nothing but complete acceptance testing. And then guys, here we have completed validation module. तो validation जहाँ पे आपने ये लर्न किया, सी एक्चुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देर आर टू टाइप्स ना, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। इन वेरिफिकेशन वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यू। वैलिडेशन में आपने देखा कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, how as per the level we can complete the process, we can complete the validation. So validation, it's all about different types and different levels that we have in software testing. So four levels we have completed: unit, integration, system, and acceptance. Again we have learned about build verification test, where we have seen smoke and sanity, and there are some other types that we have covered in non-functional too, like UI usability difference, compatibility configuration difference. See, this kind of questions they ask in the interview. What is the difference between retesting and regression? Okay, what is performance testing? What this question is all about? I18N, G11N, L10N. Basically, it is a kind of language testing. Okay, let me tell you. This is language testing. लैंग्वेज टेस्टिंग मतलब क्या, समवेयर हम एप्लीकेशन का लैंग्वेज भी टेस्ट करेंगे ना। तो somewhere what happen, application can be designed globally. Okay, so we have globalization. Application can be designed locally. So that is called localization. Let me write localization. And application can be internationalization. So इसका मतलब क्या है, internationalization मतलब क्या?
एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, ओवरऑल द वर्ल्ड। ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन किया जाएगा जो हर कोई यूज कर सकता है, लाइक अ गूगल, ओवरऑल द वर्ल्ड एवरीबडी कैन फॉलो। लोकलाइजेशन मीन्स स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कंट्री के लिए कोई एप्लीकेशन डिजाइन होगा, दैट्स कॉल्ड लोकलाइजेशन। लाइक एग्जांपल आरोग्य सेतु, राइट, which is available in India, right? So this kind of application which is only related to specific country, specific release, that is called what? Localization. And internationalization मतलब group of countries, group of language. तो some group of countries के लिए अगर कोई application ready है, that is called internationalization. Like ISTQB certification, it's a globalized, right? So one time you can perform and you will be eligible in every organization, even in every country. So group of country, it's nothing but internationalization. So internationalization मतलब क्या, जैसे एग्जांपल कई एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं जो कॉमन होते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, एंड देन वी कैन कॉल इट एज ग्रुप ऑफ और इंटरनेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो एप्लीकेशन के यूआई के साथ, बिहेवियर के साथ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द लैंग्वेज। एग्जाम्पल वेरी सिंपल, यू कैन सी when I open Google page, okay, if you observe on Google, there are different languages available. See, if I want everything in Marathi, I'll just select Marathi, and then all these options you will be able to see something in Marathi language. So at least we are able to observe that, right? What is happening? Even if I select Hindi, the UI got changed, or I'm able to see some information in Hindi. So basically, as per the user comfort, if the application used globally, if the application used as per the local area, we need to confirm that whether it should display entire UI, entire language, or that particular application look and feel as per that particular language. This example, festival के टाइम पे आपने देखा होगा Google looks different, right? क्रिसमस के टाइम पे, गणपति के टाइम पे, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स यू आर एबल टू सी। दिवाली के टाइम पे पटाखे दिखेंगे, राइट? तो हाउ इट इज सो? बिकॉज एज पर द कल्चर दे डिजाइन द यूआई, okay, they changes into this particular software application, they do update every time for every festival, different look and feel for the software application, but that is important for test। and इसीलिए ये जो concept है localization and all, what is this? तो शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है G10N। You can see in between G and N how many letters are there. It is, this number is represent what? The count of that particular, character. I think G11N, yes, globalization 11N, L10N, L10N, and I18N. Okay, so this is just what? Number of number of characters in between I and in between N. So if anybody asks you, you need to remember this part. I18N मतलब internationalization, some group of cultures के लिए जब application design develop होता है तो we need to test that. G11N मतलब globalization, and L10N का मतलब होता है localization. Okay, now what is user acceptance testing? Integration approaches, top down, bottom up, hybrid, right? This is we have completed. Functional testing क्या है? What is build verification test? So you need to explain, or you need to prepare your own answers for these questions. Okay. So here we have completed verification, validation, two important types of testing. And today it is time to start with techniques, testing methods or testing techniques, okay, which is very, very interesting. Based on this, you will get to know how to prepare any test cases. Those I have attained IS2QB workshop, already I have completed this topic, but still it is time to understand as per the manual test, okay, what are the different techniques available. देखो यहाँ पे दो टेक्निक हम स्टडी करेंगे, वन इज अ ब्लैक बॉक्स, अनदर वन इज अ व्हाइट बॉक्स, एंड दीज टू आर मेथड्स, ओके, टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन वी स्टार्ट टेस्टिंग एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, how exactly we will start with the testing? We have learned that based on requirement we can start testing. So based on requirement आप क्या करोगे? Very first you will do review, okay, you will understand the need of the customer, and once you clear with that, you will start writing your scenarios, you will start writing your test cases. This is how the process begin. But while writing the test cases, if you notice कि चलो एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है,
जैसे कि यहाँ पे एक यूजर नेम का फील्ड है, इट एक्सेप्ट 4 to 10 कैरेक्टर। तो 4 to 10 कैरेक्टर मतलब दिस इज अ गिवन रेंज। हाउ यू विल टेस्ट इट? अब इसमें कितने टेस्ट केस हम डिजाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करोगे कि आउट ऑफ 4 to 10 कैरेक्टर, मतलब रेंज है 4 to 10 कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड, राइट? तो वी नीड टू डिसाइड हियर, ओके, हाउ मेनी टेस्ट केसेस वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर। सो मेनली हमारा फोकस होता है कवर दिस रिक्वायरमेंट। कवरेज इज अवर मेन फोकस। वी शुड कवर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर डिफाइंड बाई द कस्टमर। बट ये कवरेज पे डिसीजन कैसे लोगे? तो गाइस हियर कम्स methods of the software testing into picture. Methods will guide you, methods will help you to decide how many test cases are enough to cover this requirement. Are you getting my point? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्ट केस राइटिंग के टाइम पे ये मेथड्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। इसीलिए गाइस यहाँ पे दो मेथड्स है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। White box is related to code. Simple. White box is related to code. Mostly it is responsibility of a developer to do. अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज है तो यू कैन ऑल्सो बिकम white box tester and you can test that code. But mostly it is done by the developer side. Now tell me, black box testing means what? Here, we don't need to wait till the application get ready by the developer side. Are you getting my point? At every level of software testing, we can complete white box, black box. That's true. But black box testing का exact मतलब होगा कि कोडिंग होने तक आप वेट नहीं करोगे. Based on the requirement, you can apply the method. Black box testing आप apply करो and these techniques will help you to prepare your own test cases. तो black box testing में 6 different techniques है. And with the help of those techniques, you will be able to complete your test case writing process. The very first, what does black box means? Black box means just consider any software application as a black box. And here, what is your responsibility? Provide input of the software. Okay, provide input to the software and test output from the software. That's it. So this process of testing is called black box testing. Means in black box testing, tester is responsible to provide input and test the output without bothering into finer detail. मतलब इंटरनली क्या है, कोड कैसे डिजाइन हुआ है, हाउ द कोड इज वर्किंग, हाउ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग, हाउ इट इज जनरेटिंग आउटपुट, इट डजंट मैटर फॉर टेस्टर. टेस्टर को ये नहीं चेक करना है कि इंटरनली क्या हो रहा है. टेस्टर नीड टू चेक बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ओके, टेस्टर नीड टू पास इनपुट, टेस्टर नीड टू वैलिडेट आउटपुट. दैट्स इट. दिस प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इसीलिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप कोडिंग को टेस्ट नहीं कर सकते. Black box testing, we can directly start from the requirement. So it is called specification based testing technique. It is specification based testing technique. The point is it should start right from the requirement. That's the reason. Black box testing also referred as functional testing, behavior testing. Black box testing also referred as IO driven testing. What is IO driven testing? It's all about input output. But black box testing also referred as data driven. अब इस पॉइंट को समझो कि what is data driven. Data driven का मतलब होता है एक ही एक्शन को मल्टीपल डेटा के साथ मल्टीपल टाइम टेस्ट करना. तो IO driven data driven में क्या डिफरेंस है? In IO driven generally we pass one set of input and we are testing output of that one set of input. That's it. आप इनपुट आउटपुट टेस्टिंग करोगे मतलब एक ही इनपुट को पास करके बस आउटपुट को वैलिडेट करोगे. बट व्हेन इट कम्स टू द डेटा ड्रिवन, इट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सप्लेन और एग्जीक्यूट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डेटा डिफरेंट टाइम. देखो एक सिंपल सा सिनारी सोचो कि आपके कस्टमर ने आपको बोला है कि चलो लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करो. ओके फाइन, लॉगिन टेस्ट करना है मतलब वी नीड टू पास 2 इनपुट, यूजर नेम, पासवर्ड, and will be clicking on the button. That's what our process. But अगर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि I will be giving you test data of what? 30 participant. कितने पार्टिसिपेंट का डेटा है? 30. तो 30 यूजर नेम and 30 पासवर्ड आई एम हैविंग. And now my customer is asking to me कि चलो इस टेस्ट डेटा के साथ एप्लीकेशन को टेस्ट करो. इसका मतलब आप क्या करोगे? You will take first record, first username, first password. You will enter into application and test it, whether it is login or not.
You will take second entry, second username password, apply it, check it whether you are able to log in or not. Third, then fourth. So what you are doing? Just your data is getting changed. But आपके step तो common है. तो डेटा ड्रिवन का मतलब होता है एग्जीक्यूट सेम सेट ऑफ एक्शन, एक्शन रिमेन सेम बट एग्जीक्यूट सेम सेट ऑफ एक्शन विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा डिफरेंट टाइम और मल्टीपल सेट ऑफ डेटा मल्टीपल टाइम. दिस इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन टेस्टिंग. एंड गाइज वन मोर पॉइंट, मैन्युअली ऐसा टेस्टिंग करना इज अगेन क्वाइट डिफिकल्ट. इट विल बी लेंथी प्रोसेस. व्हाट इफ टुमारो यूजर आस्क यू test it with 100 user, is it possible? 100 times separate test case को prepare करना, right? No, it is not possible. So data driven testing is also one of the very interesting scenario in automation. तो automation क्यों करोगे? अगर कोई repeated task होगा तो automation करोगे, that's a fact. For repeated actions, for repeated testing, we usually go with automation testing. तो रिग्रेशन टेस्टिंग में भी आप रिपीट करोगे सिनारियोस को, री एग्जीक्यूट करोगे प्रीवियस पास्ट टेस्ट केसेस को. सेम टास्क आप करोगे डेटा ड्रिवन में भी. बट यस, डेटा ड्रिवन इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑटोमेशन where you can run your test case with different set of data, right? And then you can validate whether user is valid or invalid. So black box testing, जहां पे tester should not require any kind of coding knowledge. कोडिंग का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप आराम से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो. इट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ रिक्वायरमेंट, सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक. तो व्हाट इज व्हाइट बॉक्स? व्हाइट बॉक्स इज रिलेटेड टू कोड, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर को इनपुट भी देना है, आउटपुट भी टेस्ट करना है अलोंग विद द इंटरनल मैकेनिज्म. तो सिंपल डेफिनेशन, it is a testing that ignore internal mechanism of the software component and focuses solely on output generated in response to selected input and execution condition. मतलब जो इनपुट पास करोगे उसी के बेस पे आउटपुट को वैलिडेट करोगे, दैट्स इट. हम यहाँ पे इंटरनल पार्ट्स को टेस्ट नहीं करेंगे, नो कोडिंग नथिंग. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज अ फर्स्ट मेथड, फर्स्ट टेक्निक दैट वी फॉलो. It is also referred as functional, IO-driven, data-driven behavioral testing, right? What does white box means? It is a process where you can pass input to the system, okay? Where you can pass input to the system, where you can check how input processed by the system to generate output. मतलब यहाँ पे IO-driven करोगे, but इसके साथ internal mechanism को भी test करोगे. Whether code is working fine, whether code is working fine and it is generating right output, it is also need to be validated. तो जहां पे कोडिंग का वर्क आएगा, डेवलपर कम्स इनटू द पिक्चर ओवर देयर, रिमेंबर. तो जनरली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, but I will be covering this topic as per the ISTQB. So tomorrow if you want to prepare for ISTQB, you will get to know कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा. जैसे कि ब्लैक बॉक्स में टोटल 6 टेक्निक्स को हम लर्न करेंगे, तो व्हाइट बॉक्स में आपको 2 टेक्निक सीखना है, स्टेटमेंट कवरेज एंड डिसीजन कवरेज. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स? इट इज वेयर वी कैन टेस्ट द प्रोग्राम कोड, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर. White box testing, it is a testing that takes into account the internal mechanism of the system. And it is also referred as structural testing, glass box testing, transparent box testing, and the clear box testing. Because it is a kind of, the transparent box where you can look inside that box and we can test it, right? So white box ये coding के related होता है. Black box is completely based on your requirement. So see, it is just a focus, or black box testing, we just focus on input and output of the software without bothering about internal knowledge of the software. So it is a technique in which functionality of the software under test is tested without looking into internal code structure, implementation detail, and knowledge of internal path of the software. This type of testing based entirely on software requirement and specification. इसीलिए ब्लैक बॉक्स के लिए यू डोंट नीड टू वेट टिल द कोडिंग पार्ट रेडी. रिक्वायरमेंट आपके पास है, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. बट मीन्स क्या एग्जैक्टली क्या करेंगे? तो देखो, इसमें 6 टेक्निक्स है. इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, यूज केस बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक,
And the last one, which is actually type of ad hoc, which is called experience based testing technique, error guessing. ये सारे टेक्निक आते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, एंड यू कैन सी दिस लिस्ट: ECP, boundary value, decision table, state transition, use case, and the error guessing, which is actually category of experience based and which is actually ad hoc tech. तो एवरी टाइम नहीं करेंगे, जब भी रिक्वायर्ड है तभी करेंगे, राइट? बट इन टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले इसका ट्रिक अंडरस्टैंड करो कि कौन सा टेक्निक कहाँ पे अप्लाई करो। सी, जब भी कोई सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी हम वैलिडेट करते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन इनपुट डोमेन, करेक्ट? हमें इनपुट डोमेन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई रेंज होगा, कोई टेक्स्ट बॉक्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि पासवर्ड शुड बी 8 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग, इट शुड इंक्लूड अपर केस लोअर केस लेटर। तो इनपुट डोमेन मतलब समथिंग वेर यू आर पासिंग सम डेटा, ओके? समवेयर हम एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं? कंप्लीट फीचर, कंप्लीट फीचर। कंप्लीट फीचर मतलब क्या? जैसे कि लॉगिन का फीचर, ओके, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीचर, ये पूरा का पूरा फीचर है जो आप टेस्ट करोगे। समवेयर वी डू एंड टू एंड, समवेयर वी डू एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक, रिलीज तक। मतलब जैसे एग्जांपल, अमेजोन में आपने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया है सर्च, आपने प्रोडक्ट को सर्च किया, ऐड किया कार्ट में, फिर आपने पेमेंट के लिए ट्राई किया, देन पेमेंट के टाइम पे इट इज आस्किंग यू टू रजिस्टर इफ यू आर न्यू यूजर, इफ यू आर ओल्ड यूजर कैन डायरेक्टली गो फॉर लॉग इन। लॉग इन करने के बाद फिर से पेमेंट प्रोसेस कंटिन्यू होगा एंड देन यू विल बाय योर प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड, स्टार्ट मॉड्यूल से लेके लास्ट मॉड्यूल तक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। तो ये तीन एरियाज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टेक्निक कौन सा फॉलो करोगे? टू रिमेंबर, इफ यू आर डूइंग इनपुट डोमेन टेस्टिंग, अप्लाई बोथ ECP एंड BVA, दोनों टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? यस गोविंद, गो हेड। तो मैम, जैसे कि आपने अभी ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का बताया, पर इसमें जो ब्लैक बॉक्स में, तो इसमें तो हमको कोडिंग नहीं करनी, पर जो डेवलपर है वो तो कोडिंग करेगा ना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में। तो आप थोड़ी ना कोडिंग चेक करोगे। व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग जस्ट अ रिक्वायरमेंट कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन। जैसे एग्जांपल, एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिक डेटा दिया है आपको कि एडमिन शुड बी यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी एडमिन 123। तो इसको टेस्ट केस में कन्वर्ट करना है ना, दिस इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट को टेस्ट कैसे करोगे? यू विल गेट अ बेसिक डिजाइन। जैसे ये हमने पहले ही कवर किया था कि जब रिक्वायरमेंट आपको शेयर किए जाते हैं, यू विल गेट अ डेमो UI, ओके, कि एप्लीकेशन फाइनली कैसे दिखेगा। तो बाय कंसिडरिंग दैट UI पार्ट एंड बाय कंसिडरिंग दिस रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर रोल? आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आपका काम है टेस्ट केस डिजाइन करो, करेक्ट? बट टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए ये टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे। तो एब्सोल्युटली फीचर्स विल बी डेवलप्ड बाय द डेवलपर, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेस्ट एनी कोडिंग पार्ट। रिमेंबर वी मॉडल गोविंद, वी मॉडल में स्टार्ट कहाँ से करोगे एंड कब एक्चुअल वैलिडेशन करोगे? जब तक कोड रेडी नहीं है तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, राइट? बट टिल द कोड व्हाट यू कैन डू? Till the code you can prepare your test cases. So we are learning this way how you will prepare your test cases. तो somewhere you will get requirement related to complete functionality, somewhere आपको टेस्ट करना है end to end scenario, somewhere आपको टेस्ट करना है कुछ input domain। मतलब पासवर्ड का ये रिक्वायरमेंट है और somewhere पासवर्ड हैज अ रिक्वायरमेंट कि ये 8 to 10 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो इसके ऊपर टेस्ट केस राइटिंग कितना करोगे? बिकॉज देखो, जब हम टेस्टिंग करते हैं या डेवलपमेंट भी करते हैं, वी हैव सर्टन टाइम लिमिट टू फॉलो, है ना? आपको टाइम भी फॉलो करना है, आपको बजट के ऊपर भी फोकस करना है, इट शुड नॉट इंक्रीज, एंड प्लस आपको रिक्वायरमेंट को कवर भी करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स एक साथ कैसे मैनेज करोगे? इफ यू नो द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रिपेयर टेस्ट केसेस, इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड यू विल एबल टू कंप्लीट द वर्क विद इन अ गिवन डेडलाइन। तो जब तक रेडी नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर, तब तक आपका काम होगा टेस्ट केस राइटिंग करना। तो वी आर लर्निंग दिस पार्ट टू डिजाइन टेस्ट केस, टू अप्लाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यू डोंट नीड टू वेट टिल द कोड गेट रेडी। आप जैसे रिक्वायरमेंट आ जाएंगे, टेक्निक को अप्लाई करो, टेस्ट केस राइटिंग कंप्लीट करो, जैसे कोड कंप्लीट होगा फिर जाके हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेम टेस्ट केस टेस्टर विल टेस्ट इन एग्जीक्यूशन, दे विल टेस्ट इट हाउ एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो ये डेवलपर डेफिनेट करेंगे, बिकॉज जब तक ये रेडी नहीं है तब तक
ऑब्वियसली हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट बिफोर एग्जीक्यूशन आपको ये सीखना है टिल द एक्सपेक्टेड रिजल्ट हाउ यू विल डिजाइन योर टेस्ट केस. क्लियर? सो फॉर दैट रीजन ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो व्हाट, इन इंटरव्यू देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ये जो 6 टेक्निक्स है, दोज आर कॉल्ड टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, पहले तो 6 टेक्निक है, कहाँ पे कौन सा टेक्निक अप्लाई करना है, आई एम गिविंग यू शॉर्टकट. अगर आप इनपुट डोमेन के अकॉर्डिंग टेस्ट करोगे, मतलब कोई भी टेस्ट डेटा को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना है, समथिंग लाइक दिस, पासवर्ड शुड बी 8 to 10 कैरेक्टर लॉन्ग, तो इस केस में आप अप्लाई करोगे ईसीपी एंड बीवीए. ये दोनों टेक्निक एप्लीकेबल है. द मोस्ट कॉमनली बीवीए. व्हाई? बिकॉज बीवीए इंटरनली फॉलोज ईसीपी टेक्निक. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपने बीवीए फॉलो किया तो ईसीपी ऑटोमेटिक कवर होगा. तो दैट्स व्हाट टू टेक्निक वी कैन अप्लाई ऑन इनपुट डोमेन. कंप्लीट फीचर के ऊपर डिसीजन लेना है कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस आर इनफ, तो हियर एक्चुअली वी फॉलो डिसीजन टेबल. जब आपको डिसाइड करना है कंप्लीट फ्लो, इट्स ऑल अबाउट द फ्लो, राइट? फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, एंड टू एंड सिनारियो, सम काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सिनारियोस. तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एंड यूज केस बेस्ड टेस्टिंग. तो ये है 5 टेक्निक्स जो आप अप्लाई करोगे. एरर गेसिंग एडहॉक है, एवरी टाइम हम अप्लाई नहीं करते. एरर गेसिंग इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर नीड और इट इज अ एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक. मतलब एनीवेज यहाँ पे कुछ अप्लाई करना नहीं है. यहाँ पे यू विल गो टू योर एक्सपीरियंस टीम एंड यू विल आस्क देम फॉर गाइडेंस. जब वो आपको बताएंगे कि चलो इस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो वी कैन प्रिपेयर मोर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ऑन दैट एरिया. तो दिस इज अ एक्सपीरियंस बेस, ये कोई भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता. whenever you need you can go for it, but it is important to understand what is input domain, how we test complete feature, how we test end-to-end scenario, and how we will apply these particular techniques under that particular domain. Got it? तो सबसे पहले ईसीपी का मतलब क्या है? समवेयर यू विल गेट अ रिक्वायरमेंट कि जहां पे आपको टेस्ट केस राइटिंग डिसाइड करना है कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस वी आर एबल टू राइट. देखो ये सारे टेक्निक आपको हेल्प करेंगे टेस्ट केस राइटिंग के लिए. सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक. सबसे पहले कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, दीज ऑल आर टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स. ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ईसीपी बीवीए आप अप्लाई करोगे इनपुट डोमेन पे, मतलब क्या? तो समवेयर यू हैव सर्टेन इनपुट टू बी फॉलो. जैसे कस्टमर ने एक सिंपल रिक्वायरमेंट दिया है कि यूजर नेम मस्ट बी 4 to 10 कैरेक्टर. तो आपको ये सीखना है कि इसका ईसीपी मतलब क्या एंड इसका बीवीए मतलब क्या. हाउ मेनी काउंट ऑफ टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड टू कवर ईसीपी, टू कवर बीवीए, ये आपको सीखना है. सेकेंड पॉइंट, हियर वी आर पासिंग द डेटा, राइट? तो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ वेल यू आर टेस्टिंग दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यू आर कवरिंग दैट ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट. तो गाइस टेस्ट केस कितना डिजाइन करोगे ये मैटर नहीं करेगा. कोई बंदा एक टेस्ट केस लिख सकता है, कोई 100 टेस्ट केस लिख सकता है. तो राइटिंग ऑफ टेस्ट केसेस काउंट, दैट डजंट मैटर, बट what you are testing, is it really you are covering requirement of the customer, that will matter always. So what is your main concept to focus? Minimum test case writing to cover maximum requirement of the customer, and that's the slogan. Okay, ये टेक्निक आपको हेल्प करेंगे मिनिमम टेस्ट केस राइटिंग to cover maximum requirement of the customer. Do remember that. Okay, मिनिमम टेस्ट केस कैसे प्रिपेयर करोगे? जो कवर करेगा मैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. दैट इज व्हाट यू नीड टू, यू विल गेट अ हेल्प फ्रॉम दीज टेक्निक्स. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टेक्निक. व्हाट इज इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस का मतलब है जो भी इनपुट डोमेन है, डिवाइड दैट डोमेन इनटू इक्वल क्लासेस, एंड बिटवीन एवरी क्लास you need to prepare at least one test case. See, maximum आप कितना भी टेस्ट केस राइटिंग कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है कि हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू कवर. एंड फिर टाइम मिलेगा तो और टेस्ट केस भी आप लिख सकते हो while राइटिंग दैट पर्टिकुलर और while कंप्लीटिंग दैट रिक्वायरमेंट. तो मैक्सिमम एवरीथिंग यू कैन राइट. इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और ईसीपी का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन. सी स्टैंड फॉर क्लास.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ईसीपी और ईपी. तो गाइस, इन ईसीपी और ईपी, concept is we need to divide input domain into two different classes. One is a valid class, another one is what? Invalid class. मतलब सिंपल ट्रिक, जो भी इनपुट डोमेन होगा आप इसको दो क्लासेस में पार्टीशन करोगे. एक क्लास होगा वैलिड, एक होगा इनवैलिड. एंड फ्रॉम एवरी क्लास यू नीड टू प्रिपेयर योर टेस्ट केसेस. जैसे सिंपल एग्जांपल, तो सपोज आई एम हैविंग यूजर नेम फील्ड, रिक्वायरमेंट इज 4 to 10 character it will accept. Now tell me, only 4 to 10 is valid. To remember, तो given requirement में जो range है that is valid. तो I will just make a class, right? For this requirement I will be making a class 4 to 10 characters. And then what? This is I will say valid class. तो इसका invalid क्या होगा? इसका मतलब है invalid केस में कोई भी डेटा अगर यूजर ने एंटर किया विच इज लेस देन 4 कैरेक्टर, less than 4 which is not accepted, so I will say this is invalid. Any character which is greater than 10 not accepted, I will say this is also invalid. So as per the definition of this equivalence class, what we need to do, we are going to divide this input domain into partition of the classes valid, invalid, and from every class you need to prepare one test case. So one test case matlab one test case for this, one test case for this class, and one test case for this class. How many test cases you will prepare? 3 test cases. So what is the ECP for this current requirement? 3 test cases are enough to cover this requirement. तो आपको पहले तो 3 टेस्ट केस पे ऊपर फोकस करना है, फिर इसके बाद अगर टाइम मिलता है यू कैन गो फॉर अदर टेस्ट केसेस टू. चेक फॉर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, चेक फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, कि किसी ने अगर 4 नंबर एंटर किए तो भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. यू कैन राइट दोज, नो इश्यूज, बट वेरी फर्स्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3 टेस्ट केसेस. तो ISTQB में आपको ये बाकी पैरामीटर एक्सप्लेन करने नहीं है. You need to just focus on a given input and you need to tell them what is ECP, what is BVA as per the question. तो ECP कैसे निकालोगे? This is the way to simple identify the ECP. ECP or equivalence partition. See, it divides the input into ranges, मतलब partition or classes, where all the element of the particular range are expected to behave same. And as per the EP, we take only one test case from each range. मतलब पार्टीशन करो एंड एक टेस्ट केस को प्रिपेयर करो. तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल भी है. एंड गाइज आई विल रिकमेंड यू, whenever you are learning these techniques, be ready with your pen and paper, because this is not a theory right now. Okay, you need to understand first how to get the ECP, how to get the BVA. So you'll be doing lot of work. तो be ready with your pen and paper and then you have to write this कि ECP हमने कैसे आइडेंटिफाई किया. नाउ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देख सकते हो. एक इंटीजर फील्ड शैल कंटेन वैल्यू बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 1 to 15. मतलब पहले रेंज को अंडरस्टैंड करो, कितना रेंज है? 1 to 15. ओके. बाय अप्लाइंग EP, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम कवरेज? तो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है EP. EP का मतलब क्या होता है कि इस रेंज को, गिवन डोमेन को 2 क्लासेस में डिवाइड करना. अब अगर मैंने डिवाइड किया कि 1 to 15 ये मेरा वैलिड क्लास है, तो absolutely less than 1 and greater than 15 will be invalid. So how many test cases are enough? Again you will get a same answer. 3 test cases are enough to cover this requirement. So answer is B. How come Govind C? That is what I'm covering, that is what I'm explaining to you. जब आप इक्विवेलेंस क्लास को फॉलो करोगे तो इस टेक्निक का मतलब होता है गिवन डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना. तो सोचो पहले कि कौन से 2 पार्ट होंगे. अगर 1 to 15 एक रेंज है तो वो आपका होगा कंप्लीट वैलिड क्लास. अगर ये वैलिड है तो इनवैलिड क्या है? इन दैट केस इनवैलिड विल बी लेस देन 1 नॉट एक्सेप्टेड, ग्रेटर देन 15 नॉट एक्सेप्टेड. तो इसका मतलब हमें एक एक टेस्ट केस इस रेंज में कवर करना है. तो करेक्ट आंसर इज बी, नॉट सी. गॉट इट? यस मैम. अब देखो इसमें मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं. जैसे एग्जांपल, अब आप बताओ कि सपोज मेरे पास कोई पासवर्ड का रिक्वायरमेंट एंड दैट एप्लीकेशन सेज पासवर्ड शुड बी मर्क्यूरी. अब यहाँ पे कोई रेंज है क्या गाइस? डू यू सी एनी रेंज हियर? नो, बट हमें कवर तो करना है. तो कैसे करोगे?
इफ आई आस्क यू टेल मी द ईसीपी फॉर दिस, तो क्या करोगे? इफ देर इज नो रेंज, there is no range, that's true, but there is a definition for ECP. You are going to divide input domain into two classes. तो बताओ मुझे इस पासवर्ड रिक्वायरमेंट के लिए वैलिड क्या है एंड इनवैलिड क्या है? What is valid class and what is invalid class? Tell me. Valid must be what? Mercury. Absolutely. अगर किसी ने मर्क्यूरी पासवर्ड एंटर किया तो एक्सेप्ट होना चाहिए. एंड कैन आई राइट इनवैलिड का मतलब अदर देन मर्क्यूरी? Other than mercury, if anything you write, that's what invalid, guys. So how many test case important, or it is enough to prepare first? Absolutely one and one. Here the answer will be two test cases are enough. Are you getting my point? यस तो मैम. डेफिनेशन पे फोकस करो. इनपुट डोमेन कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे एग्जांपल, टुमारो यू हैव दिस रेंज अकाउंट. अकाउंट है 6 डिजिट का नंबर. ओके, अकाउंट नंबर वी कैन से, and there is a 6 digit number 1 2 3 4 5 6. okay, तो पहला रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज व्हाट? अकाउंट नंबर शुड बी, एवरीबडी फोकस, हाँ, 6 digit. अकाउंट नंबर शुड बी 6 digit and first digit should not be 0. अब बताओ क्या कैसे करोगे? क्या होना चाहिए अकाउंट डिजिट, अकाउंट नंबर, पहला पॉइंट 6 digit का. एंड फिर आपको ये भी टेस्ट करना है कि उस 6 digit में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट शुड नॉट बी 0. तो इसका मतलब यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स है, राइट? सबसे पहले अगर आपने 6 digit के अकॉर्डिंग टेस्ट किया तो अकाउंट नंबर शुड बी 6 digit, दैट्स द वैल्यू. इट शुड नॉट बी लेस देन 6, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6. तो तीन टेस्ट केस तो यहाँ पे श्योर है. बट फिर भी जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट मतलब हियर वी कैन एंटर व्हाट? कैन आई से 1 to 9 एनी नंबर अलाउड, बट 0 इज नॉट अलाउड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Any number in between 1 to 9 is allowed, but 0 is not allowed. So 0 comes under invalid, and the complete one between the range 1 to 9 का कोई भी number, that is we can say always a valid. So how many test cases are enough to cover this requirement? Minimum कितना है? Minimum 5 test cases. एक तो digit wise, उसके बाद first digit के लिए remaining 2. Important to be covered. अब इसमें आप ये भी टेस्ट कर सकते हो ग्रेटर देन 9, बट एब्सोल्युटली इट इज अ फर्स्ट डिजिट गाइस, तो इट शुड नॉट एक्सेप्ट 2 digit नंबर 2 ना, राइट? तो इफ यू वांट टू कवर दिस पार्ट, एक्सेप्टेड, वैलिड. मिनिमम के अकॉर्डिंग 5 टेस्ट केसेस आर इनफ. इफ यू वांट टू कवर दिस वन, देन योर आंसर विल बी 6 टेस्ट केसेस आर इनफ. Yes, greater than 9 is nothing but what? 2 digit. But usually what happen? 1 digit should accept only one number, right? But still you can try, you can test. There might be possibility whatever number you are writing, and here it is accepting that 2 number. तो problem हो सकता है ना? तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हो. तो definitely 6 test cases or 5 test cases, both answers are true and valid here. Clear? तो जो गिवन रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे डिसाइड करोगे कि आप उसको पार्टीशन कैसे करोगे इनटू वैलिड, इनवैलिड क्लासेस. नाउ ट्राई दिस वन. सपोज आई एम हैविंग अगेन अ पासवर्ड रिक्वायरमेंट, एंड पासवर्ड का रिक्वायरमेंट है दैट इट शुड बी 8 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग. टेल मी ईसीपी फॉर दिस. पार्टीशन करो, कैसे करोगे? व्हाट इज द रेंज? 8 to 15 कैरेक्टर, मतलब ये रहेगा आपका वैलिड. वैलिड और लेस देन 8 और ग्रेटर देन 5. 15, करेक्ट. इट इज इनवैलिड. तो मतलब 3 टेस्ट केस इनफ है अभी के लिए, करेक्ट. तो ईसीपी में जनरली हम क्या करते हैं? सिंपल शॉर्टकट, कि जो गिवन रेंज होता है ना, हम फोकस करते हैं बिटवीन अ वैल्यूज. बिटवीन अ वैल्यूज आर ऑलवेज वैलिड अ क्लास. ठीक है? 8 to 15 के बिटवीन कोई भी नंबर, मतलब अगर किसी ने 9 कैरेक्टर का नेम एंटर किया और पासवर्ड एंटर किया, एक्सेप्टेड. किसी ने 10 कैरेक्टर, एक्सेप्टेड. किसी ने 11 कैरेक्टर, एक्सेप्टेड. 12, 13, 14, मोस्टली हम फोकस करते हैं बिटवीन वैल्यूज पे. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस वैल्यू टू ना, बाउंड्री.
स्पेसिफिकली आपको बाउंड्री को अगर कवर करना है, देन देर इज अ सेकेंड टेक्निक which is called BVA, boundary value analysis. Sometimes system have a tendency to fall or fail on a boundary. तो बाउंड्री को भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ईसीपी में हम फोकस करते हैं मोस्टली बिटवीन वैल्यूज एंड इनवैलिड एंड वैलिड क्लासेस, बट बाउंड्री वैल्यू इज टोटली डिफरेंट. तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज ईसीपी. तो हियर इज सेकंड क्वेश्चन फॉर ईसीपी. Suppose same field, same integer field which include 1 to 15. What question asked in ISTQB? On the above scenario, which of the following is valid collection of equivalence classes for a given scenario? अब valid collection of classes कौन से बताओ? Check the option. Which class is valid collection? जब आप 1 to 15 को डिवाइड करोगे तो एब्सोल्युटली लेस देन 1 ग्रेटर देन 15 एंड बिटवीन 1 through 15. So which option indicate all three classes? It's again very straightforward. Option A, absolutely correct. Option A is the correct answer. Less than 1, 1 through 15, more than 15. This is called ECP. But you know what? What is BVA? अब example, ऐसे ही कोई given range आपको मिलेगा and people will ask you, find out the BVA for this. तो बाउंड्री वैल्यू का मतलब होता है समटाइम्स सिस्टम हैव अ टेंडेंसी टू फेल ऑन अ बाउंड्री. तो बाउंड्री वैल्यूज को कवर करना इंपॉर्टेंट है. जैसे एग्जांपल, बाउंड्री वैल्यू को कवर कैसे करोगे? तो गाइस बाउंड्री वैल्यू में आपके पास सिंपल फॉर्मूला है. आप जो भी रेंज होगा उसको डिफाइन करो मीन एंड मैक्स से. मीन -1 करोगे एंड मैक्स +1 करोगे. तो ऑटोमेटिकली ऑल दीज बाउंड्रीज यू नीड टू कवर in your test cases. Means what? See, I'm having same requirement again. Username must be 4 to 10 character. इसमें करना है बाउंड्री वैल्यू. कैसे करोगे? यहाँ पे आपको बताना होगा मीन इज व्हाट? 4 इज अ मिनिमम रेंज. मैक्स का मतलब है 10 इज अ मैक्स रेंज. तो बिटवीन 4 to 10 एवरीथिंग इज व्हाट? एब्सोल्युटली वैलिड. ये तो वैलिड क्लास हुआ. अब इसमें इनवैलिड भी होगा. क्यों? बिकॉज हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मीन -1 मतलब किसी ने 3 कैरेक्टर एंटर किया, इट शुड नॉट एक्सेप्टेड विच इज एक्चुअली इनवैलिड. किसी ने 11 कैरेक्टर एंटर किया, इट शुड नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज ऑल्सो इनवैलिड. बट बाउंड्री वैल्यू ईसीपी में क्या डिफरेंस है? ईसीपी में आप बस पार्टीशन करते हो एंड बिटवीन वैल्यू पे फोकस करते हो. बाउंड्री वैल्यू स्टेट दैट यू नीड टू प्रिपेयर टेस्ट केसेस फॉर ईच एंड एवरी बाउंड्री. मतलब एक टेस्ट केस होगा 3 कैरेक्टर के लिए, एक टेस्ट केस होगा 4 कैरेक्टर के लिए, एक टेस्ट केस होगा 10 कैरेक्टर के लिए, एक टेस्ट केस होगा 11 कैरेक्टर के लिए. टोटल 4 टेस्ट केसेस आर रिक्वायर्ड टू कवर बाउंड्री वैल्यू. गॉट इट? ईसीपी में जिसका आंसर था 3 टेस्ट केसेस इनफ. बट बाउंड्री वैल्यू में वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ऑन बाउंड्री वैल्यूज. So it is important to cover separate test cases for that boundary. तो guys internally what is happening? अगर boundary value करोगे तो ECP तो cover हो रहा है ना. We are actually covering ECP. That's the reason. अगर आपको क्वेश्चन इस वे से आता है इंटरव्यू कि I want to test any phone number, how and which technique I will follow. तो instead of giving answer directly with ECP, you should answer directly BVA. ऑन फोन नंबर आई विल अप्लाई बीवीए. तो फोन नंबर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? नंबर शुड बी 10 डिजिट लॉन्ग. दैट्स इट, राइट? तो ये 10 डिजिट को टेस्ट कैसे करोगे? ऑन अ बाउंड्री आपको टेस्ट करना है. इट शुड बी 10 डिजिट ओनली. मिनिमम 10 नॉट एक्सेप्टेड, मोर देन 10 नॉट एक्सेप्टेड. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग योर टेस्ट केसेस फॉर बाउंड्री. हाँ, ये डिपेंड होगा कि कौन सा रिक्वायरमेंट है. समटाइम्स आपको जैसे इंडिया के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है +91 the initial code. Then as per that you will be preparing your code or preparing your test cases. Correct? But एक simple सा concept हम पहले बताएंगे कि what is boundary value. तो you should concentrate on a boundary value. And जिसमें ये formula आप basically apply करोगे. तो boundary value means the boundaries, the defect can lie near the boundaries. That's the reason the values in valid range are called valid boundary. The values from invalid range called invalid boundary. And this is the formula you will apply
ISTQB में दिया है लोअर अपर बाउंड्री विच इज नथिंग बट मीन -1, मैक्स +1। तो लोअर बाउंड्री मतलब आपका मीन वैल्यू। आपको जो लैंग्वेज में अंडरस्टैंड हो रहा है यू कैन जस्ट कीप द सेम। दिस इज योर मैक्स बाउंड्री। LB -1 इसका मतलब मीन -1, ठीक है। LB +1, आरबी मतलब अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री +1 मतलब मैक्स +1। तो हाउ मेनी पार्टीशंस विल बी देयर? 4, राइट। फॉर ऑन अ बाउंड्री यू विल प्रिपेयर वन टेस्ट केस एंड दिस इज ऑल्सो यू नीड टू कवर विच इज व्हाट, लेस देन और ग्रेटर देन बाउंड्री। तो ये आता है आपका इनवैलिड क्लास के अंदर। तो बाउंड्री वैल्यू में यू नीड टू प्रिपेयर टेस्ट केसेस फॉर एवरी बाउंड्री, दैट्स अ मेन फैक्ट। तो guys see the question. What is the first question? Text field of an application accept input range of the user. Here values allowed to be accepted the field between 18 to 30. तो पहला point क्या range है? 18 to 30 is the range. Okay. Inclusive of both value by applying BVA. जब भी टेक्निक का नाम है तो सोचो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्या कवर करोगे। BVA means almost boundaries you need to cover at any cost, ठीक है। समटाइम्स ऑप्शन में भी डायरेक्ट बाउंड्रीज आपको दिखाई देंगे तो उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू नीड टू आंसर BVA, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस रिक्वायर्ड टू कवर मैक्सिमम कवरेज। तो इसको पहले क्या करोगे, गिवन रेंज को यू हैव टू डिवाइड। अगर ये मीन बाउंड्री है एंड दिस इज अ मैक्स बाउंड्री तो डिसाइड। मीन -1 मतलब 17 के लिए एक टेस्ट केस लिखोगे, 18 के लिए एक टेस्ट केस लिखोगे, 30 के लिए एक टेस्ट केस लिखोगे एंड वन टेस्ट केस शुड बी मैक्स +1, इसका मतलब 31। तो हाउ मेनी टेस्ट केस यू नीड टू प्रिपेयर? Absolutely 4. Absolutely D is option which is true. So 4 test case minimum we need to prepare. Okay, can you try this one which is very simple? Again by applying the BVA, which of the given option consists valid collection of boundary? आप जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? व्हाट इज वैलिड कलेक्शन ऑफ बाउंड्री हियर? एब्सोल्युटली 17, 18, 30 एंड 31, दीज आर द वैलिड कलेक्शन ऑफ बाउंड्री यू फाउंड ना। तो देखो आपका ऑप्शन कहाँ पे ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, 17, 18, 30, 31। देखो यहाँ पे 17 है बट नॉट अदर ऑप्शंस। अदर बाउंड्रीज है क्या? 16 बाउंड्री है क्या? 19 बाउंड्री है क्या? नो, 17, 18 आर देयर, ओके here, but 31 is also there, but 30 is not available, even 19 is not a boundary. Here you can see all 4 options are there, 17, 18, 30, 31, okay. And here also you can observe 18 is there, 31 is there, but other are not a boundary. तो boundary value का मतलब होता है boundaries output or that values you will see in the result. Got it? तो correct answer is absolutely option C. अच्छा ये try करो, C सेम सिनारियो मतलब आपका रेंज है 18 to 30। प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन। ऑन द सेम सिनारियो अप्लाई EP एंड BVA, मतलब आपको दोनों अप्लाई करना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन कंसिस्ट वैलिड बाउंड्री एंड वैलिड इक्विवेलेंस, ये डिसाइड करना है। अब देखो वैलिड ECP का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। वैलिड ECP का मतलब होता है बिटवीन अ वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको आइडेंटिफाई करना है वैलिड बाउंड्री एंड वैलिड ECP। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे ये सब कुछ अवेलेबल है? वैलिड बाउंड्री मतलब एब्सोल्युटली 18, 30 शुड बी देयर, राइट। एंड व्हाट डज मीन बाय ECP देन? बिटवीन द वैल्यू। तो इज देयर एनी ऑप्शन यू कैन सी जहां पे ये तीनों नंबर्स अवेलेबल है? फोकस एवरीबॉडी। What is happening here? 17, 18, 18 is a valid boundary, right? But 20 is a between, there is no 30 available, so A is not a correct answer. Here you can see 18, 30 plus 25 between number bhi hai, so this is we can say consider as a correct answer. What about next? 18, 30 valid boundary hai, but 31 again it is not a valid ECP, right? It is a boundary only, but ये valid ECP का part नहीं है। आपको एक ही ऑप्शन फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों भी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर Right. बिकॉज हियर नो बाउंड्रीज अवेलेबल, वैलिड बाउंड्री तो नहीं है, 18, 30 इज नॉट अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये पॉइंट क्लियर है?
कैसे सॉर्ट आउट करोगे वैलिड ईसीपी बीवीए? नाउ before continue with the next topic, I will be giving you some more questions. Okay, तो black box testing and इसके techniques, these three questions we have already seen. Now you can try some more questions. See, this is the first question. What is written? Order number on stock control system can range between this. Okay, तो ये आपका range. Which of the following input might be result of designing test only for valid equivalence class and valid bound? Same question. Can you try? तो वैलिड बाउंड्री मतलब पहला तो पॉइंट, ये जो नंबर है ना, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर ऑप्शन. एंड देन वैलिड ईसीपी का मतलब होता है कोई भी बिटवीन रेंज. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी इन्वॉल्व. थिंक. ऑप्शन सी. ओके. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, एब्सोल्युटली. The 10,000, 99,999 and between that will be valid ECP. So definitely option C is the correct answer. Okay, other students, it is clear? Sadaf, Gitanjali, clear? Sadaf, I'm not able to hear you. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, great. Try everybody the next question. Just a minute. Okay, try this one. What is written? An input field takes year of birth between this range. Okay, कुछ year का range है. And the boundary value for testing this field. अब इस year को आपको टेस्ट करना है. कोई फील्ड में इसके बिटवीन ही नंबर्स जाएंगे, तो आपको बीवीए बताना है. 1900 and 2004. Please apply the formula, right, for BVA. If this is mean and if this is max, tell me. Max plus 1, how much? 2005. Mean minus 1, how much? 1899. So where you can see these four options as a boundary value. Absolutely option C. Correct. Okay, यहाँ पे मैंने हेल्प किया. अब आप लोग ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन. ठीक है? Okay, this is quite complicated, but I'll help you with the partition. देखो, कई बार आईएसटीक्यूबी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे एक फिक्स रेंज नहीं दिया है, आपको कोई सिनेरियो दिए जाते हैं. एंड दिस इज व्हाट द लेटेस्ट ट्रेंड अवेलेबल. तो हर एक एग्जाम में कोई सिनेरियो दिया जाएगा, आपको रेंज क्रिएट करना है. एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि करेक्ट आंसर क्या हो. अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि रेंज कैसे पहले डिसाइड करोगे. तो आपको पहला तो पॉइंट है कि जो गिवन डेटा है ना, वहां से स्टार्ट करना है. अब देखो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द पर्टिकुलर सिनेरियो. तो सिस्टम डिजाइन टू वर्क आउट टैक्स टू बी पेड. ठीक है, एम्प्लॉय हैज अ सैलरी ऑफ दिस इज द फर्स्ट इनपुट. टैक्स फ्री है. दूसरा कोई तो है नेक्स्ट 1500, ये भी 10% टैक्स है. नेक्स्ट 28,000, 22% टैक्स है. एंड फर्दर अमाउंट इज 40%. क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखो. विच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ नंबर वुड फॉल इनटू सेम इक्विवेलेंस क्लास. अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है, तो आप अपना रेंज खुद डिसाइड करो. 4,000, एम्प्लॉय हैज $4,000 ऑफ सैलरी टैक्स फ्री. मतलब अगर मैंने स्टार्ट भी किया फर्स्ट कॉलम, आई मीन फर्स्ट क्लास, 1 to 4,000 जिनका सैलरी है, एब्सोल्युटली $1 तो सैलरी नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली 4,000 ये भी ले सकते हो. ठीक है, तो इट्स अप टू यू. बट कंसिडर एक क्लास होगा $4,000 जिसका सैलरी है. अब दूसरा रेंज कहाँ से डिसाइड करोगे, तो एब्सोल्युटली 4,001 से लेके कितना 1,500, मतलब आपको 4,000 में 1,500 ऐड करना है. एंड व्हाट्स द नेक्स्ट इनपुट रेंज यू विल फाउंड? 5,500. करेक्ट. तो आई एम राइटिंग हियर 5,500. दैट्स द सेकंड क्लास. नेक्स्ट 28,000, इसका मतलब इसमें 28,000 को ऐड करो. व्हाट इज द आउटपुट? इट्स 5
5 plus 8, it's I think 13 and 3, right? So 33,500. तो 5001, okay, 5,501 से लेके 33,500 ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास। इसके बाद क्या दिया है? एनी अमाउंट, एनी फर्दर अमाउंट। फर्दर अमाउंट मतलब द वैल्यू ग्रेटर देन 501, कोई भी अमाउंट होगा वो होगा 40% टैक्स। तो ये आपका गिवन डेटा है जिसको हमने क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू क्लियर हाउ आई हैव डिवाइडेड द क्लासेस? कोई डाउट है? कैसे स्टार्ट किया, कैसे डिवाइड किया? वेन एवर देर इज अ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जस्ट नीड टू ऐड, नथिंग एल्स, एंड फिर आपके क्लासेस रेडी है। अब करना क्या है? अब क्वेश्चन तो कुछ अलग ही है। दे आर नॉट आस्किंग यू वैलिड इनवैलिड पार्ट। व्हाट दे आर आस्किंग यू कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं उन्होंने, ये आपको चेक करना है कि इट फॉल्स अंडर सेम इक्विवेलेंस क्लास। मतलब इस तीनों, ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है कि जो एक ही क्लास का पार्ट, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। अब ये करोगे कैसे? तो गाइस फॉर दैट, रेंजेस इफ यू हैव, स्टार्ट राइटिंग विद फर्स्ट ऑप्शन। 4800 किसका पार्ट होगा? 4800 यहाँ पे आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ए। 1400 मतलब यहाँ पे आएगा। तो एब्सोल्युटली ये दो अलग अलग क्लासेस में है, तो इज नॉट अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज बी? 5200 यहाँ पे आएगा, 5500 यहाँ पे आएगा, बट 28,000 यहाँ पे जाएगा। तो एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग। What about C? 28,001, 32,000, but 35 यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब लास्ट इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज यू कैन चेक दैट 5800, 28,000 in between the range, and 32 also between the range. So these three inputs are part of one equivalence class. So correct option is option D. Got it? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। गोविंद, ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स वुल फॉल इनटू सेम इक्विवेलेंस क्लास? सेम क्लास मतलब आइदर ये पहले क्लास का पार्ट होगा, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। वी फाउंड ऑप्शन डी, ऑल थ्री नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ अ सेम क्लास। गॉट इट? इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर ना? निमला, सडाफ एंड गीतांजलि? Yes, ma'am. ओके ग्रेट, ट्राई दिस वन। अब देखो सेम है, सिनारियो सेम है, आपके पास क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट कैन यू टेल मी द आउटपुट? नाउ थिंक एंड राइट योर आंसर। फॉर यू आई विल बी डिजाइनिंग दिस सिनारियो, आई मीन दैट क्लासेस अगेन। 4,000 हमें मिला था पहला क्लास, 4,001 से लेके 5,500 ये मिला था दूसरा क्लास, 5,501 से लेके आई थिंक 33,500 was our third, and 33,501 से greater, that was our last class. तो क्वेश्चन क्या है? सेम सिनारियो, but to the nearest whole pound, which of these valid boundary value analysis test case? अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, वैलिड बाउंड्री मतलब कौन सा बाउंड्री? एब्सोल्युटली आउटपुट शुड बी इन बिटवीन दिस, आई मीन दिस, एनी नंबर वुड फॉल इनटू वैलिड बाउंड्री। करेक्ट ना? ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डिजाइन किया, ये नंबर से आपके वैलिड बाउंड्री। तो बताओ अभी करेक्ट आंसर क्या है? 1,500 ये वैलिड बाउंड्री है क्या? नो। 32,000,001, is it a valid boundary? No. 28,000 is a valid boundary? No. But 33,501, yes, it is a valid boundary. Are you getting my point? So option C is the correct answer. Yes, absolutely. Is this point clear? तो आपको सिनेरियो के बेस पे क्वेश्चन को भी स्टडी करना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, and based on that you need to decide what is the correct output. Okay, that's a trick, a very simple trick. तो ISTQB में ये मार्क्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑलमोस्ट इस चैप्टर को 11 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप ये सारे टेक्निक्स प्रॉपरली करोगे, यू कैन इजिली क्रैक द ISTQB। ओके, लेट्स सी। अब ये क्वेश्चन सबके लिए है। आप लोग अपने क्लासेस को डिजाइन करोगे अपने नोटबुक में, एंड पहले मुझे क्लासेस बताओगे कि इसके ऊपर क्लासेस कैसे डिजाइन करना है। अब देखो पहला पॉइंट था, इफ आई एम आस्किंग यू
तो ये कोई पोस्टल रेट है 25p अप टू 10 ग्राम। तो G फॉर ग्राम मेजरमेंट एंड P फॉर पैसा, ठीक है। 25p अप टू 10 ग्राम, 35p अप टू 50 ग्राम, प्लस एन एक्स्ट्रा P फॉर ईच एडिशनल 25 ग्राम अप टू 100 ग्राम। तो यहाँ तक मतलब 25 से सॉरी ग्राम में कैलकुलेशन होगा तो 10 से 100। एंड से यहाँ पे लिखा है उन्होंने स्पेसिफिकली विच टेस्ट इनपुट इन ग्राम, मतलब पार्टीशन किसका करोगे, पैसे का करोगे या ग्राम का करोगे, तो एब्सोल्युटली ग्राम का करना है, नॉट पी। तो हाँ। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दीज वैल्यू बेसिकली, ठीक है। आपको फोकस करना है ग्राम के वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन दैट you need to select which will selected using equivalence partition. But before ECP पहले आप मुझे क्लासेस बताओ अप टू फोर 10 क्लासेस आएंगे। ग्राम ठीक है, अप टू 10 ग्राम मतलब पहला क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो 0 to अप टू का मतलब होता है यूजुअली जीरो हम इनवैलिड लेते हैं, ठीक है। तो अप टू मतलब यू शुड स्टार्ट विथ 1 to 10, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट क्लास 10 to 25। 11, 11 to 11 टू 25। व्हाट? 11 टू नॉट 25, 11 टू 50 ग्राम, ग्राम्स का फोकस करो। ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम के बाद 50 है, तो 11 टू 50। आफ्टर 50 ग्राम व्हाट इज रिटर्न फॉर ईच एडिशनल 25 ग्राम, मतलब 51 से अब क्या करना है, 50 प्लस 25 ऐड करना है, एडिशनल 25, यू विल गेट 75। गॉट इट? 50 प्लस 25 75। नेक्स्ट क्लास होगा 76 से व्हाट? 100, दैट्स इट। दीज आर योर 4 क्लासेस। तो 4 क्लास है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। बट क्लासेस क्या है वो देखो। मैम आपने ओके क्लासेस डिवाइड किए समझ। देखो एक और पॉइंट निर्मला, क्वेश्चन पहले पढ़ना है कि क्या पूछा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में पूछा है ग्राम्स, तो वी डोंट नीड टू टेक दिस पैसा। कैन यू सी दैट अप टू 25, 25p अप टू 10 ग्राम, 35p अप टू 50 ग्राम है, तो p को कैलकुलेट करना ही नहीं है ना, वी डोंट नीड दैट अमाउंट। व्हाट वी नीड इन ग्राम्स आपको कैलकुलेशन करना है, तो ग्राम के वैल्यू देखो ना, क्या है पहला वैल्यू अप टू 10, ये पहला है। अप टू 50 दूसरा है। यहाँ पे कुछ ईच एडिशनल 25 ग्राम ये तीसरा है। एंड अप टू 100 ये चौथा है, राइट। तो कैसे करोगे? अप टू 10 मैंने सिंपल डिस्क्राइब किया, 1 to 10 इज अप टू 10। अप टू 50 मतलब 10 के बाद वाला नेक्स्ट नंबर ना, 11 से 50। 50 में आपको एडिशनल 25 करना है, तो 51 प्लस व्हाट, आई मीन 50 प्लस 25 75। तो यू शुड क्रिएट अ थर्ड क्लास 51 to 75। एंड देन लास्ट क्या है? अप टू 100 है, 100 मतलब 76 से 100 तक। क्लियर? कैसे क्लासेस को डिजाइन करोगे? दिस इज हाउ। लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज इट्स ISTQB, ये मैनुअल टेस्टिंग नहीं है। वी आर जस्ट टेकिंग ओवरव्यू ऑफ ISTQB एंड दैट आई टेक जनरली इन एवरी क्लास। जो भी मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ISTQB है, आई विल बी कवरिंग दैट, तो पीपल गेट्स मोर कंफर्टेबल इन ISTQB ऑल्सो। तो गोविंद पहला पॉइंट, क्लासेस कैसे डिजाइन करना है, क्लियर। इसीलिए क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है कि क्या पूछा है, पहले वो फोकस करो, बिकॉज दे माइट गिव यू एनीथिंग। बट आपको पूछा है कि इन ग्राम्स तो ग्राम का ही पार्टीशन करोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके। तो अब मुझे बताओ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या क्वेश्चन है? हमारे क्लासेस तो रेडी है। अब पूछा है कि विच टेस्ट इनपुट वुड बी सिलेक्टेड यूजिंग इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। अब एक और ट्रिक, यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है कि वैलिड या इनवैलिड, बट यहाँ पे बस इक्विवेलेंस पार्टीशन पूछा है, तो आपको फोकस करना है डेफिनेशन पे। व्हाट इज इक्विवेलेंस पार्टीशन? वी शुड फोकस ऑन वैलिड प्लस इनवैलिड, रिमेंबर। वैलिड प्लस इनवैलिड। अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? पहला पॉइंट, एवरीबडी क्लासेस आर क्लियर? ऑप्शन सी। हम्म ओके, लेट्स सी। ऑप्शन व्हाट गोविंद? सी। ओके सी, श्योर?
देखो अगर यस मैम। क्लासेस है 1 to 10, देन हमारे पास है 11 to 50. आई शो यू हाउ टू सॉल्व. ठीक है, 51 to 75 एंड 76 to 100. तो पहला पॉइंट क्लासेस क्लियर है. अब पूछा है कि कौन से क्लासेस, कौन से नंबर विल बी सिलेक्टेड यूजिंग इक्विवेलेंस पार्टीशन. तो इक्विवेलेंस पार्टीशन का मतलब होता है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा क्लास, तो आपको डेफिनेशन पे फोकस करना है, विच शुड कवर वैलिड प्लस इनवैलिड. अब एग्जांपल में ए से अगर स्टार्ट करूंगी तो देखो आंसर. लेट मी टेक अनदर कलर. ओके, इफ आई स्टार्ट विथ ए, तो 8 है. 8 मतलब यहाँ पे आएगा 42 कम्स हियर, 82 कम्स डायरेक्टली हियर, एंड 102 मतलब ये आता है बियॉन्ड. तो व्हाट इज मिसिंग? दिस क्लास इज मिसिंग, तो ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर. सी, आंसर शुड बी वैलिड प्लस इनवैलिड. क्यों? बिकॉज यहाँ पे बस पूछा है इक्विवेलेंस पार्टीशन, दे हैवंट आस्क्ड यू कि वैलिड फाइंड आउट करो या इनवैलिड करो. तो आपको चेक करना है ऐसा आउटपुट जिसमें सब कुछ कवर होगा. लेट्स टेक सेकेंड. 4, 4 मतलब यहाँ पे, 15 मतलब यहाँ पे, 65 ओके हियर, 92 हियर, एंड 159 कम्स हियर. मतलब वैलिड चारों क्लास कवर है, प्लस इनवैलिड एक क्लास कवर है. ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर सी. फॉर नाउ इसको लॉक करते हैं. ठीक है, इसको लॉक किया, बट लेट्स टेक अदर ऑप्शंस टू. सी अगर फोकस करोगे तो यू आर गेटिंग 10, 50, 75, 100, ओनली बाउंड्रीज यू आर गेटिंग. तो इट इज नॉट करेक्ट आंसर. इफ यू चेक डी, 5 मतलब यहाँ पे 20, 40, ओके 40 इज हियर ओनली, 60 एंड 80, मतलब ये आता है बस वैलिड ईसीपी. लास्ट वाला ऑप्शन है ओनली वैलिड ईसीपी का. तो एब्सोल्युटली, एज पर द क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज बी. बी, हाउ कम डी? सडाफ, गीतांजलि, हाउ कम डी? वही तो वैलिड और डिस्कस कर रहे इनवैलिड। हैं. हाँ, बी आंसर क्यों करेक्ट है? बिकॉज इट इज कवर्ड वैलिड प्लस इनवैलिड. लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बस वैलिड को ही कवर करता है, इसमें एक भी इनवैलिड टेस्ट केस कवर नहीं है. सी व्हाट इज हैपनिंग, आईएसटी क्यूबी में क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या है. मैं वही पॉइंट बता रही हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन आता है कि चलो आपको वैलिड बताना है या ओनली इनवैलिड बताना है, तो ठीक है कि आप उसी एरिया पे फोकस करोगे. बट अगर क्वेश्चन में ये है कि आइडेंटिफाई ईसीपी, उन्होंने नहीं दिया कि वैलिड इनवैलिड, तो आपको डेफिनेशन पे फोकस करना है कि व्हाट डज ईसीपी मींस, जिसमें आपको दोनों कवर करना चाहिए, वैलिड प्लस इनवैलिड. तो एज पर द डेफिनेशन डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज वो ओनली वैलिड को फोकस करता है, वेयर वी नीड टू क्लियर और कवर इनवैलिड वैल्यूज टू. तो करेक्ट आंसर है आपका बी, जिसमें 4 वैलिड क्लासेस भी है, प्लस आपका इनवैलिड क्लास भी कवर हो रहा है. गॉट इट? देखो फर्स्ट टाइम करोगे इतना नहीं समझ में आएगा, आई कैन लाइक, दैट्स ओके, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड हाउ टू सॉल्व. अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है? गीतांजलि, सडाफ, क्लियर व्हाट इज द आंसर? हाँ, फोकस कि क्वेश्चन क्या पूछा है. ओके, नो इश्यूज, ट्राई दिस. चलो अभी ये सेम है, देखो सेम क्वेश्चन है, मतलब आपके रेंजेस सेम है. आई डिजाइन वंस अगेन. तो आई थिंक 1 to 10 का ये पहला क्लास था, 11 to 50 ये दूसरा है, 51 to 75 है, 76 to 100 है. ठीक है, गिवन रेंजेस आर सेम. क्वेश्चन क्या है? विच वैल्यू शुड बी सिलेक्टेड यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. अब बताओ मुझे, ये तो बहुत सिंपल है. अब बाउंड्री वैल्यू में क्या करोगे? सबसे पहले वेर यू आर गोइंग टू अप्लाई योर फॉर्मूला, अप्लाई करोगे नहीं करोगे? करोगे राइट. तो मीन वैल्यू क्या है? सबसे पहले आपके रेंज का मीन वैल्यू है 1. दिस इज मीन and this is max. And as per the formula, max plus 1 matlab 101, mean minus 1 matlab 0. Tell me where you are getting the all inputs which cover boundary value analysis. Mean, max, max plus 1, mean minus 1. सी। It's C. It's very straightforward है ना. देखो सी में तो सारे बाउंड्रीज है. जीरो कवर हो रहा है 1, 10, 11, 50, 51, 75, 76, 100 एंड 101. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, इजी. तो बाउंड्री वैल्यू में आपको मिलेंगे, आपको फोकस करना है ऑन बाउंड्री वैल्यूज. दैट्स व्हाट योर आउटपुट. ओके, दिस इज हाउ यू विल सी योर आउटपुट. ओके, ग्रेट, फाइन, नो मोर क्वेश्चंस, बट I will be sharing some more questions. Will you try that? Today on WhatsApp, I will be sharing some more interesting questions on ECP, BVA, and try those questions. Try to create your own range
and try to solve those questions too. And this document also I will be sharing. Don't worry. But point clear है कैसे solve करोगे equivalent class partitioning and boundary value analysis. Okay. So these are the two techniques जो आप apply करोगे input range पे. जहां पे भी आपको input domain को test करना है, input domain पे हमेशा ECP या BV आप apply करोगे. Tricks are very simple. ECP focus करता है इनपुट डोमेन पे, मतलब बिटवीन द वैल्यूज. यहाँ पे आप पार्टीशन करोगे, दो ही क्लासेस होते हैं, वैलिड प्लस इनवैलिड. एंड बाउंड्री वैल्यू में बाउंड्री वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट टू फोकस. मीन्स सिंपल ट्रिक, आपका मीन मैक्स एंड मैक्स प्लस वन माइनस वन, दिस इज व्हाट यू नीड टू कवर. डू रिमेंबर द शॉर्टकट्स टू. I will be sharing some more questions. Try to solve those also. Tomorrow we will continue with the next technique. What is decision table? What is state transition? What is use case, right? And error case. So black box testing mostly tomorrow complete हो जाएगा. And then we will start with white box test. Okay. So as I told you, techniques are important because इसी के बेस पे आप लोग test case writing करोगे. So we have to solve our project also, है ना. हम लोग अपना project भी करेंगे manual testing में, तो we need to understand how to start writing scenarios, how to start writing test cases, right? So that topic also we are going to cover. ठीक है. Anyways, today's time is up, so we will continue rest of the topics again tomorrow. Is that okay? कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. Okay, great. So let's stop the session and we will continue rest of the topics again from tomorrow. Bye everyone. Take care. Thank you. Have a nice day.